میری ماں ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے، اور جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اپنی نمازوں کی فکر بھی کرو، رب سے لڑائی لے کے کیا کر لو گے تم؟ سکون نہیں ملے گا۔ شاید تو سمیسٹر کر کے پینٹ کوٹ ٹائی لگا لے، تجھے کو کرسی مل جائے، سکون تجھے پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سکون تجھے اسے یاد کر کے ملے گا۔ قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا، موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے، اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا۔ ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے، اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں۔ تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، آج سے کرنا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں۔ قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا، موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے، اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا۔ ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے، اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں۔ تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، آج سے کرنا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں، پر میری امت کو تکلیف ہوگی، تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے، غریب لوگ نہیں اٹھیں گے۔ فرمایا میں نے اللہ کی نماز تہجد میں نے فرض نہیں کی، میں نے تمہارا خیال کیا ہے، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، گویا تمہاری نیند۔ اپنی نمازوں کی فکر بھی کرو، رب سے لڑائی لے کے کیا کر لو گے تم؟ سکون نہیں ملے گا۔ شاید تو سمیسٹر کر کے پینٹ کوٹ ٹائی لگا لے، تجھے کو کرسی مل جائے، سکون تجھے پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سکون تجھے اسے یاد کر کے ملے گا۔ رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی، اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے، اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا، تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے،
मलाई के लिए, थाई के लिए, इंडियन के लिए, सब के लिए एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे। उनके एक खादिम ने कहा, हजरत आप सारी रात क्यों रोते? तो वो फिर रोने लगे और फरमाया, मेरे दोस्त, याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ गुम हुआ था, मिल गया था, लेकिन एक की जुदाई में 40 साल रो 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 आंखें खत्म कर दी। मैंने इन आंखों से सारे घर को ज़बह होते देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से इस्तिआनत करो, मदद मांगो। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अगर जिंदगी में सब्र आ जाए और इंसान को ये बात नसीब हो जाए कि उसने जो काम करना है सब्र के साथ करना है, तो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए जो बेहतरीन सवारी है वो सब्र है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब्र करने वालों को जज़ा देगा ना, तो फरमाया जिन लोगों ने दुनिया में सुख उठाए होंगे ना, बहुत ज्यादा जिंदगी आसानी में गुजारी होंगी, वो भी सब्र करने वालों का इनाम देखकर ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारे जिस्म लोहे की कैंचियों से काट दिए जाते, तो आज हमें भी ये वाला अजर मिलता जो इन साबिरीन को दिया जा रहा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि जमीनों में? जलवे तेरी जात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह जमीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे, रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है। या रसूल अल्लाह, शर्मिंदा बहुत हैं, तुझे किस मुंह से बुलाएं, पर जाएं कहां, तुझ बिन यहाँ कौन मेरा है। एक बार तो देखो हमें सुल्तान मदीना, एक बार तो देखो हमें सुल्तान मदीना, हम जो भी सही महबूब तेरा कलमा तो पढ़ा है। कहते हैं कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, न लहू मेरे ही जिगर में था न तुम्हारी जुल्फ स्याह। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, ओ इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है। बगैर मैं जी नहीं सकती। जब जरूरतों पे चोट पड़ती है तो सारे इश्क भूल जाते हैं कि अल्लाह ही है जो हर हाल में वफा करता है। कौन ऐसा महबूब मिलेगा? मैं किसी को याद करूं वो मुझे याद करता है, मैं याद भुला दूं वो भी भूल जाता है। यही दुनिया का कानून। एक वाहिद अल्लाह है जो कहता है मेरा बंदा तू मुझे भूलता है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीजें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा दी। 4 चीजें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में खयानत करेगी ना उसकी इज्जत में खयानत करेगी। जिसे ये 4 चीजें मिल गई वो खुश नसीब है, दुनिया भी बन गई आखिरत भी बन गई। ये गाने हमारे सुनते हैं, ये ड्रामे हमारे देखते हैं, उनको पता है अब हुजूर की उम्मत के नौजवान अब वो बकर की नकल नहीं करते, अब वो हजरत उमर के पीछे नहीं चलते। उम्मत को जुल्फ़िकार भूल गई, उम्मत को साद बिन अबी वक़ास का तीर कमान भूल गया, उम्मत को हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत भूल गई, और उम्मत को अमीर हमजा की शहादत भूल गई। अब उम्मत
पफ बनाती है। उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत ने अपने अकाबरीन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो नबी की है। एक दफ़ा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हज़रत फातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहती हैं घर आई औरतें, कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए, हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं ये वहाँ लोगों को तबलीग करें, दीन का पैगाम दें। अब इस नाम पर तो हुजूर ज़रूर भेजा करते थे, चाहे को धोखे से ही बुलाता। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा जाओ। हज़रत फातिमा कहती हैं हाँ, तो कर ली, पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे, कई जगह पे पेबंद थे, और मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की हैं। फरमाती हैं मैंने ना, हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में 2 कतरे आंसुओं के आ गए। मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के वकार के लिए। या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नजरियात की हैं, ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का, मेहरबानी फरमा, नजर करम फरमा। हजरत फातिमा फरमाती हैं अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रसूल पाक फिर तशरीफ ले आए और फरमाया फातिमा क्या क्या सोच रही थी, क्या कह रही थी? कहा हुजूर कोई खास नहीं। फरमाया नहीं, कुछ तो तू कह ही रही थी, कुछ तो तू सोच ही रही थी। कहती है मैंने बादशाही के नजारे घर में देखे, कुछ तो सोच रही थी। हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली, अंदर से जोड़ा निकाला। फरमाया पता नहीं तूने क्या सोचा है, जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच। फरमाता है मैं बेहतरी से पहले थोड़ी देर करता हूँ और आजमाता अलग इनको जिनको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि रहमत जिन पे ज्यादा हो इम्तिहान भी उन्हीं के सख्त हो। जिनको सब्र करना आता है वो टूटा नहीं करते। ये दुनिया कितना ही झुकाए पर वो झुका नहीं करते, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकते हैं अल्लाह उन्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देता। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम पर मुश्किलात आ रही हैं, तुम पर मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में फरमा रहे हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू', हम तुम्हें बार बार आजमाएंगे, बार बार तुम पर मुश्किलें डालेंगे, तुम्हारे माल में कमी करेंगे, मुसीबतें डालेंगे, तुम पर खौफ तारी करेंगे। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र कर गए वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दे दो उनको जो सब्र करने वाले। या रसूल अल्लाह, शर्मिंदा बहुत हैं, तुझे किस मुंह से बुलाएं, पर जाएं कहां, तुझ बिन यहाँ कौन मेरा है। एक बार तो देखो हमें सुल्तान मदीना, एक बार तो देखो हमें सुल्तान मदीना, हम जो भी सही महबूब तेरा कलमा तो पढ़ा है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता है लोगों से तुम्हारी मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? या रसूलल्लाह बता दें। तो हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा तुम्हारी महफिल में है उसे जगह दिया करो। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 काम करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। जब वो आए तो उसे जगह दो, जब वो मिले तो सलाम लेने में पहल करो, और फरमाया उसे उस नाम से पुकारो जो नाम वो पसंद करता है, ऐसे नाम से ना पुकारें जिससे वो नाराज होता है। ये 3 काम करोगे तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाएगा, तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा हो जाए। ये तो दौर है वसवसों का। मैं तो कहता हूँ इसमें जो बंदा ज्यादा मसरूफ है ना, इसको रोटी खाने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, वो भला आदमी है। थक के सोए, ये टेंशनों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, गीबत में ना पड़े, गिले ना करे, बुरी सोच ना इसे आए, अल्लाह का शुक्र अदा कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो 2 सजाएं अल्लाह देगा। एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चलेगा, और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिले। सबसे ज्यादा हमें नुकसान हमारी अपनी ख्वाहिशात देती है, हमारा अपने ऊपर ही काबू नहीं। सब्र ये है कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करे, अपने आप को रोके। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था ना पहलवान कौन है? तो या रसूलल्लाह जो मैदान में उतरे और अपने दुश्मन को बिछाड़ दे। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू कर ले वो पहलवान है। रिश्तों को मेरे भाई बहनों सिर्फ बर्दाश्त से चलाया जाता है, रिश्तों पर मुसल्लत हो के रिश्ते आबाद नहीं होते। झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दबना पड़ता है। जो दबना सीखेगा अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इसका शक्ल सूरत से ताल्लुक नहीं, सोने चांदी जेवर से ताल्लुक नहीं, खूबसूरत अखलाक जिंदगी को 4 चांद लगा देते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का,
वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। हम सब गफलत में हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा अंजाम क्या होने वाला है। पैगंबर आके बता रहे होते हैं कि जिस खुशियों में तुम मुबतला हो, इन खुशियों से धोखे में मत आना। अगर तुम सेहत में हो, इस सेहत से धोखा मत खाना, फालिज भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर तुम दौलत में हो तो खुशफहमी में मत रहो, गरीब भी हो सकते हो। अगर तुम्हें अभी कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे ऊपर गमों के पहाड़ गिर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इस गफलत से निकलो, और निकलने का तरीका क्या है? उस खुदा से ताल्लुक पैदा करो जिसने तुम्हें बनाया है। उससे अगर मजबूत रिश्ता कायम कर लोगे तो वो गमों में खुद ही तुम्हें तसल्लियां देगा, थपकियां देगा तुम्हें, वो गमों से बचाएगा भी। और जो गम तुम्हारे मुकद्दर में, उसमें तसल्लियां भी कौन देगा? याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा छिन गया, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब लोग एतराज करते हैं तो क्या कहते हैं? अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं कि तुम नहीं जानते। इस गम में भी तसल्ली की बात है। ये थपकियां कौन दे रहा है? ये अल्लाह। जो लोग सुबह देर से उठते हैं ना, उन्होंने 9-9, 10-10 घंटे की भी नींद पूरी की हो ना, उठते ही उनका दिल करता है 2 बंदे मुझे दबाएं। हालांकि सो के उठने पे तो तबीयत फ्रेश होनी चाहिए, लेकिन आप उस वक्त सोए हैं जिस वक्त दीन ने कहा था कि जागो। आप हदीस पाक देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम सोते हो तो शैतान 3 गिरहें लगाता है, गंडा 3 गिरहें लगाता है तुम्हारे कान में और कहता है सो जा सो जा सो जा, रात लंबी है। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा सवेरे उठ के अल्लाह का जिक्र करता है, चारपाई पे उठा, उसने उठने की दुआ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, अल्लाहु अकबर कह लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अपने लहजे में किसी तरह अल्लाह का जिक्र कर लिया। जब वो रब का जिक्र करता है तो शैतान की पहली गिरा खुल जाती है, और जब वो वुजू करता है तो दूसरी खुल जाती है। या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें? मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ।